Hi everyone. Let's now understand in my way what is a federal state and union of states. We have always heard about that USA is having a federal state and India is having a union of state. Exactly, many of the person who are just listening this video might not know the exact meaning of this particular term. It might be possible that the lawyers or who have already studied the advocacy or are advocates might understand this. So let us understand in a very simple way. I'll explain you in a very simple way because I know many of you have not read the constitution. So it's not possible for you to understand the terms regarding to constitution. So I have simplified it. So let's first start with the definition of federal state. Let's take an example of United States of America, Switzerland and Australia, which are having this federal state system in which the independent states voluntarily join to form a union. That means United States of America is having 50 states. You have seen the flag of United States of America. It has 50 stars. That means 50 states. These 50 states were not previously together. They came into a federal system. They joined together to form a United States of America. That means United States of America, the country did not existed previously. It was formed by the union of all these independent states by their own choices. Definition of Union of States. The best example is India. In India, India was previously known as Akhand Bharat. Akhand Bharat means the entire land from Afghanistan, Pakistan, India, Myanmar, Burma, that is today's Myanmar. It was previously known as Burma, then Bangladesh, then Sri Lanka, then Nepal, then Bhutan. These were all the part of Greater India. It was known as Greater India, known as Akhand Bharat. Later on, there was a partition in which Pakistan and India got separated. This was in the year 1947, 1948. It was a very sorrowful event. Even Indians don't remember this event. We don't like to remember this event because it made a lot of bloodshed. Now what happened? What is Union of States? That means after division, there were small states already present in India. India was a wholesome part. It was a big size like a continent. I would say like a continent. So it's a single unitary integrating the states or regions, that is strong central and limited state authority. Indian states are having very limited state authority. That means very limited decisions chief minister can take of the province or the state. Majority of the decisions are taken by the central government, which is in New Delhi. Now, what are the similarities between the federal state and union of states? First point, constitution. United States of America, Switzerland, Australia, which are governed by the federal states, which are having their own constitution, as well as Union of States, that is India, is also having its own constitution. Fundamental rights. Both of the system are having similar fundamental rights. Third point, central government supremacy. This is very similar point that President of India, President of USA, Prime Minister of India, these are the central body authorities and they have the maximum power to limit the misuse of powers which can be performed by the states. Separation of powers. Separate powers are given, like law and order related to a state or a province in India is governed by the chief minister, whereas the law and order of the national level and national security and border securities are governed by the Ministry of Home Affairs or MHA, or it is conducted by the Home Ministry under the authority of Prime Minister. Now there is a difference. USA Constitution is rigid. It has very less amendments. Since USA has been formed, there is no amendment in the Constitution. There are no changes. Whereas India regularly amends as per the situation, what kind of laws should be changed, what kind of laws should be implemented, what is the welfare of the humanity or what is the welfare of the Indian citizens. It has always been taken care by the central government. Second point, in US, nothing is discussed. Everything is regulated under the power of US President. That means recently you have seen Mr. Trump has taken the charge as a US President and on the first day he signed the executive orders. That means the orders as per his wish. He is the only person who will decide. But in India, we have parliamentary system like lower house and upper house. Lower house is Lok Sabha, upper house is Rajya Sabha, in which there is a voting and a discussion is made on every amendment and on every decision. Then there is a judicial system. USA is having an advanced judicial system, but it is rigid because once a judge is always a judge until he is alive. That means he is going to serve for the entire lifetime. In India, judges are having a particular age. After that, they get retired, they can take rest and spend the rest of their life with their families. US has a dual citizenship. You can take dual citizenship. You may be from another country, you may be having that citizenship also, you can take the dual citizenship also. Right now, US has made some amendments and changes in the executive orders that new citizenship will not be provided to the children which will be born in US, that is on US soil.
Whereas in India, it is a single citizenship. If you are relocating yourself from another country, you need to leave the citizenship and adapt the citizenship of India. And if you have left India to another country, you are no more an Indian citizen. You will be termed as non-residential Indians. So this was all the explanation. Now there's a question. Sometimes people ask me, sir, like in 1947 when India got partitioned and it was a two countries came into existence, like presently it's India and Pakistan. Can this kind of thing happen in the future with India? So my answer is no, it cannot happen. If any of the political leader, if they are telling you that India will get partitioned on the basis of religion or on the basis of conflicts, sorry to say, this is a false information they are giving you, whether they are from ruling party or from opposition. Why? Let me explain. India is a union. It's a union of states, and in which there is a very limited power which is given to the state government. The state government cannot retaliate and say that we want to get separate from the Union of India and we want to make a new country. It is not possible because India's sovereignty doesn't allow any of the states to get separated. Once you are a part of India, you will be always a part of India. No matter whatever happens, if there is a situation of war, the entire India will face and you will also have to face because you are a part of the sovereign country. But in US, it is not. In US, any of the states can have a declaration or a kind of voting system in which they can, if they get around 55% votes, they can exit from the United States of America. So don't believe on politicians, my friend, because politicians always provide you the false information. Politicians are somewhat like they just keep you in dark. And if you are educated, I know many of you will say that, sir, we don't know anything about law or anything about constitution. How could we? Let me tell you one thing. If you don't know, you use chat GPTs and all the tools of AI. Why can't you ask a simple question from them? They will definitely give you the answer. I'm not against of using technology, but I believe if you want to get knowledgeable, if you use the technology, that's very good. So don't believe on politicians and don't ruin your life by fighting with each other. In India, we believe as we are a secular country. Hindu, Muslims, Sikh, Christianity, Jainism, Buddhism, Parsis, Jewish, all are same. We never differentiate. The only thing is that our politicians, whether they are from ruling party or whether they are from opposition, are using caste, religion to consolidate their voting banks. So please be alert, please be educated, behave like an Indian. We are the safest democracy on this earth. So there will be no further partition. So don't get terrified with the provocative statements and narrations from the political persons. Take care. Thank you. नमस्कार सभी लोगों को। मैं आज आप लोगों को फेडरल स्टेट और यूनियन ऑफ स्टेट्स के बीच में डिफरेंस बताऊंगा। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे मुझे कि सर हम लोग तो लॉयर्स नहीं हैं, हम लोग तो कॉन्स्टिट्यूशन जानते नहीं है, संविधान जानते नहीं है। भाई इसके लिए इतना डिटेल जानने की जरूरत नहीं पड़ती। बेसिक सिविक्स की किताब होती है 10th स्टैंडर्ड की, चाहे आप सीबीएसई में पढ़ते हैं, एनसीईआरटी की बुक हो, चाहे आप स्टेट बोर्ड में पढ़ते हैं, आपको इसके बारे में बहुत संक्षिप्त विवरण दिया हुआ है। उसी विवरण को मैं बहुत साधारण भाषा में, जिससे आप लोगों को आसानी से समझ में आए, मैं आपके सामने आज प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कृपया इसे ध्यान से समझिए, क्योंकि रिसेंटली ये देखा गया है कई नेता जो होते हैं वो ये बोलने लग गए हैं कि देश का विभाजन फिर से हो जाएगा। तो उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि देश का विभाजन नहीं हो सकता, स्पेशली हिंदुस्तान का विभाजन नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि अगर कोई विभाजन की बात सोचेगा भी तो वहां पे प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। चलिए इसे समझते। हम पहला एग्जांपल लेते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे एक फेडरल स्टेट है, ये फेडरल स्टेट्स कहलाते हैं। फेडरल सिस्टम की पहचान क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसे समझते हैं। परिभाषा सबसे पहले होती है छोटे छोटे कई स्टेट्स, छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट्स एक साथ मिलकर एक बड़ी कंट्री बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं फेडरल स्टेट। ये अपनी इच्छा से आते हैं और आपके साथ इच्छा से शामिल होते हैं और इनके पास ये स्वतंत्रता होती है कि जब चाहिए इच्छा से अलग भी आपसे हो सकते हैं। डेफिनेशन, अगर हम यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी हम हिंदुस्तान यानी इंडिया का एग्जांपल ले, तो इंडिया वो देश है कि जो पहले से अखंड भारत था, यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, बर्मा, जिसे आज हम म्यांमार बोलते हैं, श्रीलंका, फिर उसके बाद कुछ पार्ट आपका नेपाल, भूटान, ये पहले से हिंदुस्तान में जुड़ा था बॉस। हिंदुस्तान बहुत बड़ा था, हिंदुस्तान जो था अखंड था। हिंदुस्तान कभी कोई छोटे छोटे स्टेट्स में बना ही नहीं। हिंदुस्तान तो एक बड़ा देश था, बड़ा लैंड मास था, कॉन्टिनेंट जैसा था, आप ये मान के चलते हैं। तो हिंदुस्तान में क्या हुआ, जब यूनियन ऑफ स्टेट बनाई गई, जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी जो है हमारे, जिन्हें हम रचिता बोलते हैं, उन्होंने बहुत सोचा, उन्होंने, गांधी जी ने बड़ा सोच समझ के चीज का डिसीजन लिया कि यूनियन ऑफ स्टेट्स करते, फेडरल नहीं करते।
उन्हें मालूम था कि भविष्य में अगर कोई अलग होना चाहे तो अलग नहीं हो सकता। कारण ये, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में नियम लिखा है कि अगर आप हिंदुस्तान का पार्ट हो और अगर आप किसी भी प्रकार से असंतुष्ट हो तो आप अपनी प्रतिक्रिया कोर्ट के माध्यम से रख सकते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो। मगर आप देश से अलग होकर एक अलग देश बनाने की बात नहीं सोच सकते, क्योंकि यूनियन ऑफ स्टेट ये कहता है कि पहले से आप कभी अलग थे ही नहीं, तो अगर आप अलग थे ही नहीं तो आप अलग हो ही नहीं सकते। दूसरे सबसे बड़ी बात, कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज लिखा हुआ है कि अगर मान के चलते हैं कि आप किसी परिस्थिति वर्ष आपके ऊपर अटैक होता है, यानी देश के ऊपर अगर हमला होता है, बहुत बड़ा युद्ध होता है, तो युद्ध में आप भी उतने ही हिस्सेदार रहेंगे जितना कि बाकी देश है। तो यहाँ पर कैसा है, एक यूनिटी है, एक सोवर्जिनिटी। यूएसए में ऐसा नहीं, यूएसए में, स्विट्जरलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में कोई भी कभी भी अलग हो सकता है। अगर मेरे कोई फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड या यूएसए से ये वीडियो देख रहे हैं और अगर वो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा पढ़े होंगे तो उन्होंने देखा होगा वहाँ पे फेडरल स्टेट लिखा हुआ है। मैंने तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, तो उसमें हिसाब से मैंने ये देखा है वहाँ पे फेडरल स्टेट लिखा हुआ है, और उसकी डेफिनेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ वही डेफिनेशन वहाँ पे लिखी है। उसकी डेफिनेशन है, इंडिपेंडेंट स्टेट्स वॉलंटरीली, वर्ड देखो क्या यूज हुआ है, वॉलंटरीली, स्वेच्छा से, खुद की इच्छा से, बिना किसी दबाव की, फ्रॉम फॉर्म अ यूनियन दैट इज नोन एज फेडरल स्टेट्स। मगर यूनियन ऑफ स्टेट में अ सिंगल यूनाइटरी इंटेग्रल पार्ट, मतलब पहले से, जैसे हम हमेशा बोलते हैं ना कि जम्मू कश्मीर हमारा इंटेग्रल पार्ट है देश का। हम क्यों बोलते हैं? हम इसलिए बोलते हैं कि सच में जम्मू कश्मीर हमारा इंटेग्रल पार्ट है। इंटेग्रल पार्ट इसलिए क्योंकि वो पहले से हमारा था, वो कहीं से जुड़ा नहीं है आगे, ठीक है। फिर इसके बाद आती है सिमिलैरिटी। हम कुछ सिमिलैरिटी समझते दोनों में। पहली बात तो दोनों का कॉन्स्टिट्यूशन है, फेडरल सिस्टम का भी है, यूनियन ऑफ स्टेट्स का भी है, बट फेडरल सिस्टम की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें प्रावधान का कोई रास्ता नहीं है, मतलब रिजिड है। यूएस का अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन देखूं तो उसमें कोई प्रावधान ही नहीं, कोई अमेंडमेंट्स नहीं होता है, जो है सब प्रेसिडेंट के हाथ में, प्रेसिडेंशियल पावर एक प्रकार से। फंडामेंटल राइट्स दोनों में है, हमारे पास भी फंडामेंटल राइट्स है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उनके भी, यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स में भी फंडामेंटल राइट है और फेडरल स्टेट्स में भी। फिर उसके बाद आता है सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीमेसी। दोनों में सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीमेसी है, वहां पे भी है, हमारे यहाँ पे भी है। अगर कोई स्टेट का मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर सही तरीके से काम नहीं करता और वहां की पब्लिक अगर उससे असंतुष्ट है और वो कुछ गलत काम कार्य करता है, किसी प्रकार के करप्शन इसमें पड़ता है, तो प्रेसिडेंट को पूरा अधिकार है उस पूरी संसद को, वहां की यानी विधानसभा जिसे हम कहते हैं, उसे पूरा का पूरा बर्खास्त यानी डिसॉल्व करके दोबारा से चुनाव करवाया जाए। तो ये सेंट्रल सुप्रीमेसी सेम यूएस में। इसके बाद आता है सेपरेशन ऑफ पावर्स। लिमिटेड पावर्स दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट को, इसलिए कि स्टेट गवर्नमेंट कल की डेट में कोई बगावत ना कर सके, कोई ये बात ना बोल सके कि हमें अलग होना है, हमें अलग रहना है। भाई आप एक एग्जांपल लेते हैं, मध्य प्रदेश बीच में है हिंदुस्तान के। अब मध्य प्रदेश बीच में, मध्य प्रदेश ने उचक के बोल दिया कि नहीं, मेरे को तो अलग देश बनाना। भाई ये कैसा देश है? लैंडलॉक देश, आजू बाजू एक पूरा देश उसको घिरा हुआ है और बीच में वो देश बन के बैठा है, पॉसिबल नहीं है। इसलिए यूनियन ऑफ स्टेट्स को जानबूझ के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान के तौर पर डाला गया है, जिसमें ये लिखा गया कि इसे कभी बदला नहीं जा सकता और कोई अमेंडमेंट इसके ऊपर लागू नहीं होगा। फिर बात करते हैं डिफरेंसेस की। यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, बड़ा रिजिड है। रिजिड मतलब कैसा? वहां पे एक जज जो बैठा ना, वो लाइफ टाइम मरते दम तक जज रहेगा, यानी उसको कोई रिटायरमेंट नहीं बेचारे को। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमारे पे जज साहब की पर्टिकुलर उम्र है, उसके बाद वो रिटायर हो सकते हैं, अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं, उनके साथ जी सकते हैं, आराम कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं रिटायरमेंट लाइफ। फिर इसके बाद आता है जिसे हम कहते हैं यूएस में प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होते हैं। देखो अभी थोड़े दिन पहले ना ट्रंप साहब ने जब लिए प्रेसिडेंटशिप की ओथ, और उसके बाद उन्होंने धड़ाधड़ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए। ये ऑर्डर्स वही होते हैं जो प्रेसिडेंट चाहता है लागू हो जाए, और ये इसके लिए कोई डिस्कशन नहीं होता यूएस में। यूएस में कोई सेनेट का डिस्कशन नहीं होता, कोई वोटिंग नहीं होती। मगर हिंदुस्तान में होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसलिए इंडिया के डेमोक्रेसी और यूएस के डेमोक्रेसी में जमीन आसमान का अंतर। इंडिया के डेमोक्रेसी और वहां का जमीन आसमान का अंतर। इंडिया की डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा क्लियर है। यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा होती, लोकसभा में कोई चीज पास होती, राज्यसभा में जाती, उस पर बहस होती, उस पर वोटिंग होती, उसके बाद फिर प्रधानमंत्री उसका ड्राफ्ट तैयार करते हैं, हम होम मिनिस्टर्स का ड्राफ्ट तैयार करते हैं, राष्ट्रपति जी को दिया जाता है, राष्ट्रपति जी उसे साइन करते हैं, और फिर वो जाता है अटॉर्नी जनरल के पास, अटॉर्नी जनरल से वो जाता है सुप्रीम कोर्ट के जज के पास, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब उसको साइन करते हैं, अटॉर्नी जनरल साइन करता है, फिर वो जाता है कहां पर? लॉ मिनिस्ट्री में जाता है, और लॉ मिनिस्ट्री जो है उसको फिर इंक्लूड करती है कॉन्स्टिट्यूशन की नई जो बुक हर साल छपती है उसमें अमेंडमेंट के तौर पर। ये प्रोसीजर है। ये यूएस में नहीं है बस, ये इंडिया में। तो जो लोग ये बोलते हैं कि इंडिया का डेमोक्रेसी सेफ नहीं है, तो भैया इंडिया का डेमोक्रेसी बहुत सेफ है, बहुत सेफ है। आप यूएस में नहीं हो, अच्छा है। नहीं तो कोई भी आपका स्टेट बीच में से बोल देता था कि मैं देश बन जाऊंगा, तो आपकी लग गई रहती, क्योंकि कैसा होता, आपको एक तो फंड्स नहीं मिलते, आपके पास उतनी आर्मी एयरफोर्स नेवी नहीं रहती। तो इंडिया ने यूनियंस ऑफ जो स्टेट जो बनाया है, ये बड़ा सही फंडा है, और ये किसी कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ल्ड के यूनियन ऑफ स्टेट वर्ड है ही नहीं। आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन घूम लीजिए। फिर उसके बाद बोलता है यूएस प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, मैंने आपको बताया, ठीक है ना। फिर आता है इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब जुडिशियल समझते हैं। यूएसए का जो जजेस का जो पैटर्न है, जजेस का पैटर्न कैसा? वहां ट्रायल्स ज्यादा नहीं होते, इंडिया में ट्रायल्स होते हैं। इंडिया में किसी इंसान को तब तक बेकसूर माना जाता है जब तक उसके ऊपर कोई कसूर यानी उसका अपराध साबित नहीं हो जाता है, भले उसके लिए लंबा समय लगे। हिंदुस्तान का कानून ये कहता है कि भले एक अपराधी छूट जाए चलेगा, हम उसको दोबारा पकड़ लेंगे, मगर एक बेगुनाह को फांसी नहीं होनी चाहिए, बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए।
फिर आ जाता है यूएसए का ड्यूल सिटीजनशिप। यूएसए में ना आप ड्यूल सिटीजनशिप रख सकते हो, यानी अपने देश की भी रख सकते हो, वहां की भी रख सकते हो, वहां का भी ग्रीन कार्ड आप ले सकते हो। मगर बेटा यहाँ पर क्या होता है, इंडिया जो है, इंडिया ये नहीं करता। इंडिया बोलता एक बार तुमने मेरा देश छोड़ा ना, तुम नॉन रेसिडेंशियल इंडियन कहलाओगे, और दूसरी बात तुम सिंगल सिटीजनशिप रखोगे, या तो वहां की रख लो या तो यहाँ की रख लो। और यहाँ के रखते हो तो यहाँ रहना पड़ेगा, वहां रह रहे हो तो भैया हम एनआरआई बोलेंगे आपको, और आपकी यहाँ पे वोटिंग का अधिकार आपसे छीन लिया जाएगा, आपको सिटीजनशिप यहाँ की नहीं रखनी है। ड्यूल सिटीजनशिप का कोई प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है और भविष्य में आएगा भी नहीं। तो मैंने उम्मीद करता हूँ मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा फेडरल और यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब एक रिक्वेस्ट है, प्लीज नेताओं की बात मत सुनिए कि देश का विभाजन हो जाएगा, देश टूट जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा। भाई वो नहीं हो सकता यार कॉन्स्टिट्यूशन के। हमारे यहाँ पे ना कोई भी छोटा सा रूल भी पास करना है ना, उसका लोकसभा राज्यसभा में जाता है और वहां पे जाने के बाद उसकी वोटिंग होती है, बहस होती है, तब वो जाके पास होता है। इतना आसान नहीं है। ये यूएस नहीं है कि प्रेसिडेंट ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया और देश का विभाजन हो गया। ये नहीं हो सकता है यहाँ पर। हिंदुस्तान में ये चीज नहीं हो सकती। इसे वर्ल्ड की आप सबसे सेफेस्ट डेमोक्रेसी में हो। कृपया करके नेताओं की बात मत सुनिए। ये 8वीं 9वीं 10वीं पास है, इनको कॉन्स्टिट्यूशन नाम की कोई चीज मालूम ही नहीं है। ये जीरो है कॉन्स्टिट्यूशन में। थोड़ा सा मार्केट जाइए या कोई भी बुक स्टॉल जाइए या फ्लिपकार्ट या अमेजोन से हिंदी में, मराठी में, गुजराती में, जिस भाषा में आप है उस भाषा में आपको संविधान की कॉपी आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। 300 350 रुपए की आती है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। बढ़िया बैठिए, उसको पढ़िए, उसको समझिए और उसको ये जानिए कि आपका देश का संविधान क्या है और ये नेता आपको चूरण कैसे बेचते हैं और आप चूरण खा लेते हैं। तो मैं सभी से उम्मीद करता हूं मैंने जो समझाया होगा उसे समझा होगा। आपको अगर लगता है कि ये मेरी समझाया हुआ प्रयत्न आपके लिए सही है तो प्लीज इस प्रयत्न को लोगों तक पहुंचाए, लोगों तक ये बात समझाए कि कृपया करके नेताओं की बातों पे मत आइए। 350 रुपए की किताब खरीदिए, रोज 2 पेज पढ़िए, पूरा संविधान जो है 6 महीने के अंदर आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।